for the scorer. We need your 12th man of Team Gladiators to assist the team player's name for the scorer. Team Spartans captain has won the toss and elected to bat first. This is the fourth match played in this ground number 1 at AKW Sports Facility, the state-of-art cricket facility which is emerging in Umulquaim soil, which is inaugurated in July 2025. After that, it has witnessed more than 500 matches in this venue, which is a batting-friendly pitch. Today we are witnessing SP Premier League, that Saporji and Palonji group organized the Premier League for their staff. Yeah, here we go for the first ball of the match number 3. Gopal and Vijay Shetty as the opener for Team Spartans. On his mark is the first delivery with a single. Harshraj is the bowler. This time nicely played towards the covers region. Goes from the back foot and ball is cruising towards the boundary for 4. What a start here for Team Spartan after electing to bat first. With his boundary, Vijay Shetty has opened his account. Once again, Harshraj. Vitesh will face Harsh for the second time in this innings. This time nicely played towards the mid-down region. Finds Nitin at the field. Still couldn't stop the batter from taking a single here. One more run added to the scorecard. Score moves on to 6 now. With a single brings Gopal into the striker end. This time short length delivery sensibly played towards the point region for a single. The clever piece of batting here by both the openers of Team Spartans, Gopal and Vitesh, not losing any chance to score runs in each delivery. Once again, Harshraj. This time goes for a fancy shot reverse sweep. Couldn't get the enough bat on it. That's a direct hit. Appeal for the run out. So definitely that's a very, very close call for umpire here. इसी के साथ नए बल्लेबाज का आगमन हुआ है
हरदेव सिंह क्रीज पर वितेश को जोड़ते हुए। इस बार बेहतरीन गेंद बैकफुट पर जाकर डिफेंस किया था वहां पर हरदेव ने। कोई रन का इजाफा नहीं। इसी के साथ पहली ओवर की समाप्ति। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर स्कोर इज 7 for 1। ओवर का जिम्मा संभाला था मुकेश ने। एक बड़ा मुकाबला होता हुआ इस AKW स्पोर्ट्स के ग्राउंड नंबर 1 पर, जहां पर टीम स्पार्टन्स और टीम ग्लैडिएटर सामने सामने। पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था यहां पर टीम स्पार्टन्स के कप्तान ने। दूसरी ओवर प्रगति पर मुकेश। इस बार शॉर्ट लेंथ डिलीवरी, जगह बनाकर खेलने की कोशिश, कोई सफलता नहीं। और एक डॉटेड डिलीवरी आता हुआ। बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर मुकेश द्वारा। लगातार दूसरा डॉटेड डिलीवरी इस ओवर का। और एक बार मुकेश। इस बार शॉर्ट लेंथ डिलीवरी। इस बार गेंद टकराई है बल्ले के बीचों बीच और निकल पड़ी है सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए। और एक बार मुकेश। वितेश को इस बार शॉर्ट लेंथ डिलीवरी। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर वितेश और हरदेव के बीच। और एक रन का इजाफा। 12 रन कुल मिलाकर स्कोर बोर्ड पर स्कोर। 1 विकेट के नुकसान पर ओवरों की संख्या दूसरी। और एक बार मुकेश टू हरदेव। बेहतरीन गेंदबाजी। अभी तक पहली 5 गेंदों पर मात्र 5 रन दिए हैं यहां पर मुकेश ने। ये दर्शाता है इनकी गेंदबाजी के अनुभव का। और एक बार मुकेश दूसरी ओवर की आखिरी गेंद को लेकर। इस बार शॉर्ट लेंथ डिलीवरी। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर से। एक अतिरिक्त रन का इजाफा हुआ है स्कोर कार्ड पर। और एक बार मुकेश टू हरदेव। Nicely ball, takes the leading edge of the bat, reaches the fielder at the third man. Couldn't stop the batter from taking a single. With the single of over number 2 comes to an end. After completion of 2 overs, score is 14 on the board for the loss of 1 wicket.
गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए नितिन, जो कटर डिलीवरी के लिए जाने जाते हैं। पिछली गेंद मैच पर बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था। इस बार ओवर पिच डिलीवरी बेहतरीन तरीके से खेल दिया था उसको कवर फील्डर के ऊपर से। जब तक फील्डर गेंद को वापस करते 2 रन आसानी के साथ पूरा कर दिया था यहां पर हरदेव और वितेश की जोड़ी ने। यहां पर अच्छी शुरुआत मिली है, धीमी शुरुआत जरूर मिली है स्पार्टन्स को, लेकिन इंपॉर्टेंटली यहां पर कोई विकेट, सिर्फ एक ही विकेट खोया है टीम स्पार्टन्स ने। 9 विकेट अभी तक बाकी रखते हुए, जो अगली ओवरों पर बल्लेबाजों को गेंदबाजों के ऊपर प्रहार करने के लिए सहायता करेगी। इस उम्मीद के साथ नितिन और एक बार हरदेव को। इस बार बेहतरीन गेंद, जिस तरीके की कटर डिलीवरी के लिए जाने जाते हैं नितिन, उसको बाखूबी निभाते हुए टीम ग्लैडिएटर्स के लिए इस मैच पर। और एक बार नितिन टू हरदेव, वंस अगेन बैटर वाज नॉट रेडी। Once again, Nitin to Hardev. बार कदमों का इस्तेमाल, खेलना चाहते थे उसको ऑन साइड पर लपेट कर खेलने की कोशिश हुई थी, लेकिन बल्ले पर गेंद आई नहीं। दूसरा डॉटेड डिलीवरी, और एक बार नितिन टू हरदेव। इस बार फिर से कदमों का इस्तेमाल, अपील फॉर द स्टंपिंग। बहुत ही बेहतरीन विकेट कीपिंग का मुजाहिरा। और एक बार नितिन टू हरदेव। इस बार हल्के हाथों से पुश कर दिया था उसको फाइनल की दिशा पर 1 रन के लिए। बहुत ही कसी हुई बेहतरीन ओवर यहां पर नितिन द्वारा। पहले 5 गेंदों पर सिर्फ 3 रन दिए हैं। इसी के साथ डॉटेड डिलीवरी के साथ एक बेहतरीन ओवर की समाप्ति होते हुए नितिन की। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है सिर्फ 17 रन 1 विकेट की नुकसान पर। Once again, Mukesh has been brought back into attack over number 4 for team Gladiators. Hardev is on strike. This time, good length delivery. Punches it from the back foot toward the short mid-wicket region for a single. और एक बार मुकेश, इस बार रिवर्स स्वीप की कोशिश, गेंद हवा पर, लेकिन भाग्य का साथ मिला है वहां पर बल्लेबाज को। फील्डर गेंद तक पहुंच नहीं पाए थे, फिर भी बेहतरीन फील्डिंग वहां पर उस ग्लैडिएटर के फील्डर द्वारा। जर्सी नंबर 05 लगभग 2 रन रोके हैं अपनी टीम के लिए। 2 रन के साथ 20 का आंकड़ा यहां पर पूरा कर चुका है टीम स्पार्टन्स। So foot counters will be opened in another 5 minutes of time. That's an announcement from the organizers for all the teams participating in this SP Premier League. The foot counters will be open in another 5 minutes of time. Veg and non-veg food both will be arranged for all the staffs of SP group. I request all the players and the captains to be ready to have a tasty lunch at the lunch counters at AKW Sports Facility.
और 2 रन का इजाफा होते हुए स्कोर कार्ड पर दो स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन 1 विकेट की नुकसान पर। और 1 रन का इजाफा। बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी अभी तक सभी गेंदबाज ग्लैडिएटर द्वारा। The Shapurji and Palonji Group Premier League. The season 2 is happening here in AKW Sports Facility. This time, fumble in the fielding there by the fielder at Covers region. Drops the easier catch and gives life to Hardev Singh. That's what we have witnessed here. It's not that easy for any fielder to take a catch under the rays of the sun here. So next match in the ground number will be played between SP Smashes versus SP Super Strikers. I request both the team captains to be ready. You will be called for the toss right after the first innings of this match, which is happening here in ground number 1. The match number 4 is happening here between Spartans and team SP Gladiators in the ground number 1 of AKW Sports. गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए इरशाद को लाया गया है. Sorry, it's a Nageshwar. पांचवी ओवर का जिम्मा संभालते हुए as per the pitch conditions we have seen, first overs has been always consistent, and after the last 4 overs definitely the runs are leaking. That's what we have witnessed in the previous matches. So definitely they should look for 40 to 50 runs in the last 4 overs for team Spartans to have a decent score on the scoreboard. Nageshwar starts off with the wide here. A big appreciation to Shapurji and Palonji Group for organizing such a wonderful cricket tournament in the second consecutive years for all the staffs of SP Group. This truly reflects the company's commitment not just to business excellence but to the employees' well-being and the team spirit. That's what we have seen throughout this tournament since this morning. Once again, Nageshwar has conceded 6 in the previous delivery to Vitesh. This time short length delivery. Once again the result is same. Ball is cruising outside the mid-wicket boundary for the maximum. The second consecutive 6 of this over for Nageshwar. And Vitesh is the man who is trying to do all the damage. 38 runs on the board. That's what we have witnessed here so far in this tournament. The batting is quite easier in this end. The runs are leaking much higher compared to the other end. This time, lofted in the air again. Back-to-back sixes for Vitesh Shetty. 19 runs from the first 3 deliveries of Nageshwar. यहाँ पर वापसी करनी पड़ेगी नागेश्वर को अगर इस मैच पर बने रहना है तो 3 गेंदों पर 19 रन आ चुकी है. देखना है बाकी 3 गेंदें किस प्रकार की होगी.
We can see a lot of talent in this SP Group of company. SP Group has delivering a wonderful piece of talent. This time, no ball call from umpire, followed by a free hit. इस मैच पर अंपायर की भूमिका निभाते हुए अनुभवी अंपायर टेनिस बॉल क्रिकेट के किशोर और करण, बहुत ही अनुभवी अंपायर है टेनिस बॉल क्रिकेट के। अक्सर यूएई के मैदानों पर दिखाई देते हैं ये दोनों ही अंपायर किशोर और करण की जोड़ी। और एक बार नागेश्वर हल्का सा दबाव महसूस करते हुए इस बार शॉर्ट लेंथ डिलीवरी, धीमी गति से फेंकी हुई गेंद पूरी तरीके से चकमा दे दिया था वहां पर बल्लेबाज वितेश शेट्टी को। एक सुनहरा मौका गवा दिया है वहां पर बल्लेबाज ने, वरना चौथा छक्का हो सकता था इस ओवर पर। और एक बार नागेश्वर राइट आर्म राउंड द विकेट होकर इस बार फुल टॉस फेंकी हुई गेंद, वही दिशा लेकिन 4 रन इस बार। नो बॉल का इशारा आया है अंपायर द्वारा। One more no ball here. Quite an expensive over here from Nageshwar. Lot of actions in this over. Runs are leaking and leaking and leaking here. 2 no balls and a wide and followed by 3 sixes and a 4. Once again Nageshwar, this time full toss one. Second consecutive boundary here. DJ Naeem is entertaining the crowd here with his wonderful DJ skills. He is diversifying his song skills with the different languages to entertain the diversified staffs of SP Group. Once again, third boundary of this over. We have witnessed 1 wide, 2 no ball, 3 sixes and 3 fours in this over. Quite an expensive over comes to an end. After the completion of 5 overs, score is 58 for 1. That's the most expensive over so far of this tournament in ground number 1. That is 33 runs has been leaked in the over of Nageshwar. Definitely that's the turning point of this match. Once again, Nitin has been brought back into attack, over number 6 for Team Gladiator. This time over pitch delivery, lofted in the air and keeper comes underneath it but drops the catch again. What is happening here in the squad of Gladiators? They are giving away the runs as a gift. They are losing the easy chances of taking a catch. Score is 60 on the board, 6th over in progress. Once again, with a short length delivery, nicely played towards the square leg region. Finds the gap between the fielder of square leg and mid wicket region for a 4. इस बाउंड्री के साथ वितेश शेट्टी has reached at 45 runs from 20 deliveries. Sorry, Hardev is the man on strike. Will face Nitin for the 3rd time in this over. इस बार बेहतरीन गेंद लेकिन दिशा से भटक गई थी, जिसको वाइड करार दिया था यहाँ पर एक अनुभवी अंपायर किशोर शेट्टी, जो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के लेवल 3 अंपायर्स कहलाते हैं। अक्सर यूएई के मैदान पर टेनिस बॉल के लिए अंपायर की भूमिका निभाते हैं। इस मैच पर मेन अंपायर के रूप पर। और एक बार नितिन फुल टॉस गेंद, कदमों का इस्तेमाल जरूर हुआ था लेकिन
बीट हो गए थे बल्लेबाज, वाइड करा दिया है अंपायर, दिशा से भटकती हुई गेंद, दूसरा वाइड इस ओवर का। हल्का सा दबाव महसूस करते हुए यहां पर गेंदबाज नितिन, इस बार बेहतरीन गेंद, टप्पा खाने के बाद गेंद को रीड करना बहुत ही मुश्किल साबित होता हुआ बल्लेबाज हरदेव के लिए। बहुत ही बढ़िया साझेदारी यहां पर हरदेव और वितेश शेट्टी के बीच। इस ओवर के बाद और 2 ओवरें फेंकी जानी बाकी। बहुत ही मजबूत स्थिति पर अभी तक यहां पर टीम स्पार्टन्स, जिन्होंने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। और एक बार नितिन टू वितेश, इस बार फुल टॉस फेंकी हुई गेंद, गेंद हवा को चीरते हुए निकली है। इसी के साथ 50 रन पूरे वितेश शेट्टी के लिए। Congratulations Vitesh for entertaining the crowd with the boundaries and sixes here. What a tremendous batting performance here. Phenomenal batting performance by this batter for team Spartans. Once again, Nitin to ball his last ball of his over. Swept away between the fielder there. Fine effort, but couldn't get a success in this fielding by this fielder at the deep. And ends up with the boundary. With this boundary, over number 6 comes to an end. Score is 77 on the board. And definitely we can expect a highest score on this ground, number 1 of this SP Premier League Season 2. The previous highest score was 89 runs. And it seems like that can be easily broken in this match of between Spartans and Team Gladiators. Once again, Harsh Raj has been brought back into attack over number 7 for Team Gladiators. Hardev is on strike. Short length delivery. Plays it from the back foot for a single. This brings again Vitesh Shetty, the man who has done all the damage today to the Team Gladiators, is on strike. The man who has played his most destructive innings for the Team Spartans. This time nicely bowled, change of pace by the bowler Harsh Raj. Beats the batter completely. No runs has been conceded. 2 balls, just 1 run conceded by Harsh Raj. Good piece of bowling action here. This time short length delivery. There is an announcement of reward for the bowler Harsh Raj here. अगर हर्ष राज इस ओवर पर 2 विकेट हासिल करता है तो उसे 50 दिरहम का इनाम दिया जाएगा. That's for Harsh Raj. Wide call from the umpire Kishore here. One more extra run added to the scorecard. Once again, there's an announcement from the team management of Team Gladiators. अगर हर्ष राज इस ओवर की आखिरी 3 गेंदों पर अगर 2 विकेट हासिल कर लेता है तो उसको 50 दिरहम से सम्मानित किया जाएगा. और एक वाइड यहां पर ऐसा लग रहा है कि पैसे की लालच पर अपनी दिशा से भटक गए हैं यहां पर हर्षराज. लगातार दूसरा वाइड है इस ओवर का. इसी के साथ 80 रन का आंकड़ा यहां पर पूरा कर चुका है. इस बार बेहतरीन गेंद. ये दर्शाता है इस गेंदबाज के अनुभव का. एक ब्लॉक होल डिलीवरी थी जिस पर पूरी तरीके से चकमा खा गए थे वहां पर बल्लेबाज वितेश शेट्टी. ओवर की 2 गेंदें फेंकी जानी बाकी है. और एक बार हर्ष, इस बार शॉर्ट लेंथ डिलीवरी, रफ्तार से बीट किया था वहां पर बल्लेबाज वितेश को. एक आरंभिक बल्लेबाज के रूप पर आए थे वितेश शेट्टी. अभी तक 55 रन बनाकर नॉट आउट, 26 गेंदों का सामना करने के बाद. एक एंकरिंग और हाई स्कोरिंग इनिंग्स उनके बल्ले से आता हुआ. और एक बार हर्षराज ओवर पिच डिलीवरी खेल दिया था उसको हवा पर और एक आसान सा कैच पाने का मौके को गंवा दिया है वहां पर मिड ऑफ के फील्डर ने.
अगर एक विकेट हासिल करती तो कम से कम 25 दिरहम की उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन उस मौके को भी गवा दिया है वहां पर टीम ग्लैडिएटर्स के फील्डर और गेंदबाज ने। गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है यहां पर इरफान ने। And one more offer for the team Spartans here. If team scores another 18 runs, that means if the team completes 100 runs on the scoreboard, the team management will give 100 dirham for the team captain. इसी के साथ विदेश रिटायर्ड हर्ट होकर पेविलियन वापस होते हुए एक बेहतरीन इनिंग्स खेली थी टीम स्पार्टन्स के लिए। विदेश शेट्टी ने एक सलामी बल्लेबाज के रूप पर आए थे क्रीज पर और आखिरी ओवर पर अपना विकेट थ्रो किया है रिटायर्ड हर्ट के रूप पर। इस बार ओवर पिच डिलीवरी, कदमों का इस्तेमाल, गेंद सीधा फंस गई थी गेंदबाज के हाथ। इसी के साथ और एक विकेट गंवाया है टीम ग्लैडिएटर्स ने। नए बल्लेबाज के रूप पर आए हैं कार्तिक। क्रीज पर शिव को जुड़ते हुए बहुत ही मजबूत स्थिति पर है यहां पर टीम स्पार्टन्स। 83 रन बनाकर 2 विकेट खोई है, सॉरी तीसरा विकेट खोया है पिछली गेंद पर। 4 गेंदें फेंकी जानी बाकी। इधर से 7 रन बना लेती है तो इस ग्राउंड का हाईएस्ट स्कोर होगा। पिछले मैच पर 89 रन बनाई थी। वो रिकॉर्ड ब्रेक हो सकता है। इस बार दिशा से भटकती हुई गेंद वाइड करार दिया है यहां पर अंपायर किशोर ने। इस एक रन के साथ स्कोर इज 84 ऑन द बोर्ड। 4 balls are still remaining in the innings of team Spartans. At least 10 to 15 runs can be easily scored. और एक बार दिशा से भटकती हुई गेंद और एक वाइड का इजाफा हुआ है स्कोर कार्ड पर। रनों की संख्या बढ़ते हुए 85, 3 विकेट की नुकसान पर। इस बार बेहतरीन शॉट खेल दिया था उसको डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा पर। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर दोनों ही बल्लेबाज शिव और कार्तिक के बीच। और एक बार इरफान, इस बार ब्लॉक होल डिलीवरी, बेहतरीन गेंद। 88 रन बन चुकी है। इस ग्राउंड पर हाईएस्ट स्कोर था 89 रन दूसरे मैच पर आई थी। और एक बार इरफान इस बार लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ बैट से और एक अतिरिक्त रन का इजाफा स्कोर कार्ड पर। स्कोर बढ़ता हुआ 89, 3 विकेट की नुकसान पर। इस मैदान पर पहली इनिंग्स का हाईएस्ट स्कोर है 89, उसको लेवल किया है यहां पर टीम स्पार्टन्स ने। इस बार ओवर पिच डिलीवरी
लपेट कर खेलना चाहते थे यहाँ पर बल्लेबाज, लेकिन पूरी तरीके से गेंद बल्ले पर आई नहीं। एक डॉटेड डिलीवरी आता हुआ इरफान से। ओवर की आखिरी गेंद फेंकी जानी बाकी। The next match in this ground number 1 will be played between SP Smashers versus SP Super Strikers. I request both the team captains please come to the mic point for the toss. Last one ball remaining in this over. The retired hurt has been shown as a wicket there. It will not be counted as a ball. The first ball was Vitesh Shetty's retired hurt. So that's a retired out. Is displayed as a wicket ball. That will be counted as a no ball. No ball has been bowled. और एक बार इरफान इस बार बेहतरीन शॉट मारने की कोशिश, वाइड का इशारा और एक रन का इजाफा। 90 रन का आंकड़ा यहां पर पूरा कर चुका है। दिस इज द हाईएस्ट स्कोर इन द फर्स्ट इनिंग्स इन दिस ग्राउंड नंबर 1 by Spartans. Once again Irfan to Shiva. Nicely played towards the long off region. Good piece of running between the wicket there. Gone for the third run and completes it quite comfortably. Clever running between the wicket there by both the batters Shiva and Karthik. With this 3 runs, over number 8 comes to an end. After completion of 8 overs, score is 93 for 3. So this is the time for the call for the match. Next match will be played between Team Smashers and Team Super Strikers. I request both the team captains to come for the toss at the mic point. Also, I request Mr. Jeevan to do the tossing ceremony for the next match. Mr. Jeevan from the organizing side, you are required here at the mic point for the toss. The next match in this ground will be played between SP Smashers and SP Super Strikers. I request both the team captains come to the mic point at ground number 1. The captain of Team Smashers and Team Super Strikers. We need you here for the toss for the next match.
Batsman. Please, batsman. Batsman, please. Four. बेहतरीन ओवर साबित होता हुआ यहाँ पर टीम ग्लैडिएटर्स के लिए पहला ओवर पहली 3 गेंदों पर 10 रन बटोर चुकी है। इस बार बेहतरीन शॉट खेल दिया था उसको मिड ऑफ की दिशा पर 1 रन के लिए। इसी के साथ पहला विकेट यहां पर गंवाया है टीम ग्लैडिएटर्स ने। सलामी बल्लेबाज आउट होकर पेविलियन वापस होते हुए।
अच्छी वापसी यहां पर टीम स्पार्टन्स के लिए। पहले 4 गेंदों पर 11 रन देने के बाद एक विकेट हासिल कर लिया है यहां पर टीम स्पार्टन के गेंदबाज राजशेखर ने। और एक बार राजशेखर ओवर पिच डिलीवरी खेल दिया था उसको कवर्स की दिशा पर। बेहतरीन फील्डिंग वहां पर I request all the players of Smashers to stay away from the official's desk. I request all the players from the Smashers to stay away from the official desk. Your presence is distracting the view of the officials here. इसी के साथ दूसरा विकेट यहां पर खोया है टीम के दारोमदार डेंजरस बैट्समैन नितिन आउट होकर पेविलियन वापस होते हुए। एक बेहतरीन कैच लिया था वहां पर अजय ने टीम स्पार्टन्स के। But also the announcement from the organizers, the food is ready. The lunch counters are open and I request all the staffs of SP Group, please enjoy the lunch. We have all the options of veg and non-veg dishes waiting for you behind the dugout here. खाने का इंतजाम किया गया है, खाने की काउंटर ओपन हो चुकी है। वेज और नॉन वेज दोनों फूड्स अवेलेबल है सभी स्टाफ के लिए एसपी ग्रुप के। The next match in this ground will be played between Team Smashers versus Team Super Strikers, whereas Smashers captain has won the toss and elected to field first. तो ले चलते हैं इस मैच की ओर। दूसरी ओवर प्रगति पर 1.4 ओवर डाली जा चुकी है। 17 रन है रन संख्या।
स्कोरबोर्ड पर 2 विकेट की नुकसान पर। After completion of 2 overs, score is 18 on the board for the loss of 2 wickets. New bowler in is Karthik to bowl the over number 3 for team Spartans. I request Jeevan from the organizer side. I request Jeevan, please report to the mic point. Jeevan Katil. I request Jeevan from the organizer side, please report to the mic point. तो ले चलते हैं मैच की ओर। कार्तिक अगली गेंद के लिए तैयार। पहली गेंद दिशा से भटकती हुई गेंद वाइड करा दिया यहाँ पर अंपायर ने। एक अतिरिक्त रन के साथ ओवर की शुरुआत कार्तिक द्वारा। पहले 2 वाइड के बाद एक सिंगल रन आता हुआ टीम ग्लैडिएटर्स के स्कोर कार्ड पर। स्कोर इज 21 ऑन द बोर्ड। गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है कार्तिक ने। एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य यहां पर पीछा करते हुए टीम ग्लैडिएटर्स। इस बार लो फुल टॉस गेंद कदमों का इस्तेमाल हुआ था, खेल दिया था उसको वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा पर। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, जिसके बदौलत सिंगल्स को डबल पर तब्दील कर दिया था दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस ओवर पर अभी भी 3 गेंदें फेंकी जानी बाकी। इस बार शॉर्ट लेंथ डिलीवरी लपेट कर खेलना चाहते थे उसको ऑन साइड पर, लेकिन कोई सफलता नहीं। गेंद सीधा पहुंची थी विकेट कीपर के हाथ। और एक बार कार्तिक। ओवर की 5वीं गेंद इस बार हाथ से फिसलती हुई गेंद। नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर किशोर द्वारा। इस मैच के अंपायर के रूप पर करण और किशोर आईसीसी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के लेवल 3 के अंपायर रह चुके हैं किशोर, जो इस मैच पर मेन अंपायर की भूमिका निभाते हुए उनका पूरा साथ देते हुए स्ट्राइकर एंड पर लेग अंपायर के रूप पर करण। इस बार लो फुल टॉस गेंद खेल दिया था उसको मिड डाउन की दिशा पर। अच्छी फील्डिंग होती तो रन आउट हो सकती थी। बढ़िया सा अपील वहां पर, लेकिन कोई पुरस्कार नहीं वहां पर अंपायर किशोर द्वारा।
2 रन का इजाफा। बेहतरीन चीते की दौड़ लगाते हुए दोनों ही बैट्समैन यहां पर इस विकेटों के बीच। Of a completion of a 3-over score is 27 for the loss of 2. They still require 67 runs from 30 deliveries. And also I request Jeevan Katil. I request Jeevan, please come and report to the mic point. The Jeevan from the organizer side. After your lunch, you can come and report to the mic point here. चौथी ओवर का जिम्मा संभालते हुए हरदेव। पहली गेंद खेल दिया था उसको हवा पर, फील्डर वहां पर मौजूद और बेहतरीन कैच उस शॉर्ट मिड विकेट की दिशा के फील्डर द्वारा, जिसके साथ विकेट नंबर 3 खोता हुआ यहां पर टीम ग्लैडिएटर्स। नए बल्लेबाज के रूप पर टीम के जान और शान इरफान का आगमन हुआ है क्रीज पर। चौथी ओवर की शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर हरदेव। पहली गेंद बेहतरीन गेंद, और एक बार हरदेव टू इरफान। इस बार फुल टॉस गेंद खेल दिया था उसको स्क्वायर लेग की जानिब, फील्डर वहां पर मौजूद। जब तक गेंद को वापस करते, 1 रन आसानी के साथ पूरा करते हुए यहाँ पर इरफान। इस बार बेहतरीन शॉट, 4 रन आता हुआ यहां पर टीम ग्लैडिएटर्स के पक्ष पर। न्यू बैट्समैन Yes, clear. We can start now. 32 runs on the board for the loss of 3 wickets.
Last one delivery remaining of हरदेव. बेहतरीन गेंद, बेहतरीन ओवर साबित हुआ है ये हरदेव सिंह का. टीम स्पार्टन्स के लिए सिर्फ 6 रन इस ओवर से और एक महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया है हरदेव सिंह ने टीम स्पार्टन्स के लिए. स्कोरबोर्ड पर रनों की संख्या है 3-3 for 3. दैट इज द जर्सी नंबर ऑफ यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल. बाकी बचे 4 ओवर पर 61 runs required for team Gladiator to register a first victory in this SP Premier League Season 2. 4 ओवरों के बाद बॉलिंग की एंड को बदल दी जाएगी. अगली 4 ओवर जो है कैमरामैन एंड से की जाएगी, जहां पर रनों की संख्या बढ़ने की पूरी उम्मीद की जाती है, क्योंकि पिछले मैचों में भी हमने देखा था कि 4 ओवरों के बाद जब बॉलिंग एंड को बदल दी जाती है 10 रन प्रति ओवर आराम से बन जाती है. इस उम्मीद के साथ दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद. 4 ओवर पर 61 रन का लक्ष्य है. गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है अजय टीम स्पार्टन की ओर से. 4 overs 61 runs required. The required run rate is 15 runs per over. Ajay will bowl to Rishad. Rishad and Irfan, who has opened their innings in the previous match for team Gladiators. They are here in the crease after losing 3 wickets of team Gladiators. Score is 33 for 3 after the completion of 4 overs. बड़ी शॉट की बाउंड्रीज और सिक्सेस की तलाश करनी पड़ेगी यहां पर इरशाद और इरफान की जोड़ी को, अगर इस मैच पर बने रहना है. तो इस उम्मीद के साथ 61 रन का लक्ष्य है 24 गेंदों के आगे. बहुत ही मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल ही नहीं. एक बढ़िया इनिंग्स और साझेदारी की सख्त जरूरत है इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच टीम ग्लैडिएटर के लिए. इसी के साथ अजय राइट आर्म ओवर द विकेट होकर छोटी गेंद खेल दिया था उसको स्क्वायर लेग की जानिब. फील्डर वहां पर मौजूद. सिर्फ 1 रन का इजाफा. लूज गेंद की तलाश करनी पड़ेगी यहां पर बल्लेबाज रिशाद और इरफान को. और एक बार अजय, इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप बाहरी किनारा लिया था बल्ले का. फील्डर वहां पर तैनात थे फर्स्ट स्लिप की दिशा पर. बेहतरीन फील्डिंग कार्तिक द्वारा. लगभग 2 या 3 रन रोके हैं टीम के लिए. और एक बार अजय ओवर की तीसरी गेंद को लेकर, इस बार फुल टॉस फेंकी हुई गेंद खेल दिया उसको हवा पर. फील्डर वहां पर मौजूद, लेकिन हड़बड़ाहट उन दोनों फील्डरों के बीच, जिसके बदौलत एक कैच लपकने का मौके को गवा दिया है वहां पर फील्डरों ने. पर कप्तान हरदेव यहां पर फील्डिंग में तब्दीली लाते हुए डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर को स्वैप किया है कवर्स के फील्डर के बीच. और एक बार अजय, स्ट्राइकर छोर पर उनका सामना करेंगे इरफान. ओवर की चौथी गेंद ओवर पिच डिलीवरी, ब्लॉक होल डिलीवरी थी. खेल दिया था उसको
वाइड दिशा लॉन्ग ऑन की दिशा पर अच्छी फील्डिंग वहां पर उस डीप मिड विकेट के फील्डर नरेश द्वारा। एक रन से संतुष्ट यहां पर इरफान। एक रन के साथ रनों की संख्या है 37, 3 विकेट के नुकसान पर। और एक बार अजय, स्ट्राइकर छोर पर रिशाद। इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप जाती हुई गेंद खेलने की कोशिश जरूर हुई थी वहां पर, लेकिन सफलता नहीं बल्लेबाज रिशाद को। कोई रन की बढ़ोतरी नहीं। बेहतरीन ओवर साबित होता हुआ अजय का ये 5वां ओवर, जिस पर सिर्फ 4 रन आए अभी तक। इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप जाती हुई गेंद वाइड करार दिया है यहां पर अंपायर किशोर ने, और एक अतिरिक्त रन का इजाफा हुआ है स्कोर कार्ड पर। ओवर की आखिरी गेंद फेंकी जानी बाकी। और एक बार अजय टू रिशाद। इस बार बेहतरीन फील्डिंग वहां पर उस डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर द्वारा, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाए। इसी के साथ 5वीं ओवर की समाप्ति। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 overs, स्कोर इज 40 for 3. The required run is 54 runs from 18 deliveries. The required run rate is 18 runs per over, which is definitely looks difficult but not impossible in cricket. But we can't predict the result till the last ball of this innings has been bowled. The new bowler brought into attack is Rajashekhar, who's bowling his second over of in this innings. This time over pitch delivery, lofted in the air, takes the elevation, but didn't get the distance. Find the fielder underneath it, but bit of fortune here for the batter. Didn't lose his wicket. The drop catch at the end resulted in 2 runs added to the scorecard here. Score moves on to 42 now. The 6th over in progress. They still required 52 runs from 17 deliveries. The next match in this ground will be played between SP Smashers versus SP Super Strikers, where SP Smashers captain has won the toss and elected to bowl first. Once again, Rajashekhar, over pitch delivery, nicely played towards the mid-wicket region for a single. But definitely the singles and doubles will never serve the purpose here for Team Gladiators. They have to look for boundaries and sixes. At least 2 boundaries or sixes in an over can only the way to come at least closer to the victory. This time outside the off stump, nicely played towards the long off region. Ball is closing towards the boundary for a 4. Wonderful piece of batting here by the batter of Team Gladiator. Rishad is the man who's trying to accumulate some runs for his team. The required run is still cruising over 18 runs per over. Once again, Rajashekhar to ball right arm round the wicket to Rishad. This time trying to leave the ball, thinking it's a wide, but cleverly bowled by the Rajashekhar for the dotted delivery. Still 2 more deliveries are remaining in this over.
SP Premier League Season 2 is all happening here in the three beautiful grounds of AKW Sports Facility at Quaim Ground. We have started playing the match here since 8 o'clock in the morning, and we are witnessing the fourth match in this ground number 1 between Team Spartans and Team Gladiators. इसी के साथ 50 रन का आंकड़ा यहां पर पूरा हो चुका है टीम ग्लैडिएटर्स का, जिससे अभी भी बहुत दूर है यहां पर टीम ग्लैडिएटर्स। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, बाकी बचे 12 गेंदों पर 44 रन का लक्ष्य है यहां पर टीम ग्लैडिएटर्स के आगे। दैट मींस रिक्वायर्ड रन इज 22 रन पर ओवर। नरेश यहां पर गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए, डेफिनेटली दे हैव टू लुक फॉर अ ओवर लाइक नागेश्वर हु हैज कंसीडर्ड 33 रन्स फॉर ग्लैडिएटर। दे लुक फॉर दैट काइंड ऑफ बॉलर फ्रॉम टीम स्पार्टन्स. That's the only way to score this 44 runs in 12 deliveries. This time nicely played, bowlers back, finds the gap, but good piece of work there with the fielder at the long on region. Just settled for a single. The first runs from this over. 4 more deliveries are remaining. Still required 43 runs. Once again, Naresh nicely bowled. Not giving any room to the batter to free his arms. That's a wonderful piece of experienced bowler Naresh from Team Spartans. So I'm over pitch delivery, nicely played again toward the wideish long gone region this time. Good piece of work there by the fielder at the deep boundary, and not giving any room for the batter to go for extra runs. उसी के साथ रिटायर्ड हार्ट के रूप पर एक विकेट गंवाया यहाँ पर टीम ग्लैडिएटर्स ने। नए बल्लेबाज के रूप पर हर्ष क्रीज पर जुड़ते हुए। रिशाद अपना विकेट खोया है रिटायर्ड हार्ट के रूप पर पिछली गेंद पर। इस ओवर की 2 गेंदें फेंकी जानी बाकी, और एक बार नरेश गुड लेंथ डिलीवरी लपेट कर खेलना चाहते थे उसको ऑन साइड पर, कोई संपर्क नहीं वहां पर गेंद और बॉल के बीच। रिटायर्ड हार्ट की वजह से 1 विकेट दिखाई दे पड़ रहा है वहां पर स्कोर कार्ड पर, वो काउंट नहीं किया जाएगा। इस बार लो फुल टॉस गेंद खेल दिया था उसको हरमान सिंह के पास, हरदेव सिंह के पास 1 रन के लिए। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 7 overs, स्कोर इज 54 फॉर द लॉस ऑफ 4. गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है यहां पर अजय। आखिरी 6 गेंदें बाकी। इस बार शॉर्ट लेंथ डिलीवरी बैकफुट पर जाकर खेल दिया था उसको लॉन्ग ऑन की दिशा पर 1 रन के लिए। सिंगल्स और डबल से काम तो नहीं बनने वाली है टीम ग्लैडिएटर्स के लिए। 39 रन 5 गेंदों के आगे।
लगभग नामुमकिन सा लक्ष्य यहाँ पर टीम ग्लैडिएटर्स के लिए। सिर्फ औपचारिकता जो है बाकी रह चुकी है इस गेम पर। और एक बार अजय बेहतरीन गेंद और एक सिंगल ऐड होता हुआ रन संख्या पर। कुल मिलाकर रन संख्या है 56, 4 विकेट की नुकसान पर। अगला मैच इस ग्राउंड पर खेला जाएगा टीम एसपी स्मैशर्स और टीम एसपी सुपर किंग्स के बीच, जहां पर पहले टॉस जीतकर इनवाइट किया है ऑपोजिट टीम सुपर स्ट्राइकर्स को बल्लेबाजी करने के लिए। और एक बार स्ट्राइकर छोर पर हर्ष सामना करेंगे अजय का। इस बार फिर से ओवर पिच डिलीवरी खेल दिया था उसको शॉर्ट मिड विकेट की दिशा पर हरदेव के पास। कोशिश जरूर हुई थी वहां पर फील्डिंग करने की, लेकिन सफलता नहीं। 1 रन से संतुष्ट यहां पर दोनों ही बल्लेबाज। इसी के साथ आखिरी 2 गेंदें बाकी रहते हुए अजय सामना करेंगे इरफान। फिर से ओवर पिच डिलीवरी खेल दिया था उसको बॉलर्स बैक। फील्डर वहां पर मौजूद, सिर्फ और 1 रन का इजाफा। ओवर की आखिरी गेंद बाकी रहते हुए इसी के साथ टीम Spartans are inch away from the victory here, and the last ball has been bowled. इसी के साथ टीम Spartans has registered a victory against team Gladiators. Congratulations team Spartans for registering a victory, and also thank you so much team Gladiators for entertaining the crowd here in this venue. Once again, we would like to thank the organizing committee of Sapurji and Palonji group for organizing such a wonderful cricketing tournament for all their staffs. It's a big appreciation moment for Shapurji and Palonji group for organizing this wonderful cricket tournament, second consecutive year for their staff. This truly reflects